Bismillahirrahmanirrahim. I warmly welcome all the candidates who came in this foggy weather all the way from different cities of Pakistan. And I welcome our chief guest and worthy speaker and facilitator, Professor Sohail Khurshid Lodi, who is pioneer of hysteroscopic surgery in Pakistan, and he is teacher of teachers and mentor of mentors. I'm going to give a brief description about master class in hysteroscopy. What is hysteroscopy? A brief introduction about this. A little bit about the institutions: Akhtar Said Medical and Dental College, Lahore, and Akhtar Said Medical and Dental College, Islamabad campus. And this is Farooq Group of Hospitals. Alhamdulillah, we have got 5 hospitals in Lahore and 2 in Islamabad. And recently, we have also taken over the Doctors Hospital. And Alhamdulillah, I have the honor of doing the first robotic hysterectomy on 5G Medbot robot in Doctors Hospital. So coming to the hysteroscopy, as you all know that hysteroscopy means visualization of the uterine cavity with the help of an endoscope. And in my brief presentation, I will be telling about the indications, a little bit about the equipment, which is very important. I request someone to please go to theater and bring the equipment over here, the diagnostic and therapeutic, and also the resectoscopes. What is diagnostic hysteroscopy? What is operative hysteroscopy? What is office hysteroscopy? What is resection of myomas? What is morcellation? What are the timings of the procedure? It is very important. And distension media, what complications we can encounter, and a few success stories. We all know about the indications of hysteroscopy. In abnormal uterine bleeding, we can diagnose submucosal fibroids, myomas, polyps, and especially in postmenopausal patients, when people jump for hysterectomy, it is endometrial atrophy most of the time, which can only be diagnosed on hysteroscopy, endometrial CA. Then infertility, we can see the intrauterine adhesions, fibroids, polyps. And I cannot underestimate the role in uterine malformations. I encounter a lot of uterine malformations, but we cannot differentiate between septate and biconvex uterus. It can only be done either by good MRI or by doing the laparoscopies at the same time. Today we have a patient in which we will do the diagnostic laparoscopy and then we will do the septum resection to rule out whether it is biconvex uterus or not. So the therapeutic indications, it should be see and treat. जब भी आप hysteroscopy करें, see and treat. आप देखें और आपके पास सारा equipment होना चाहिए. Then you go with that patient if you find any abnormality in that. So we can resect the septum, we can do the, but if it is a biconvex uterus, we can do the metroplasty either by laparoscopy or by open. We can do polypectomies, adhesiolysis, submucosal resection of myomas, endometrial resection in heavy menstrual bleeding, removal of displaced and impacted IUCDs, resection of caesarean scar niche or isthmos seal. This is a new condition and all of us are encountering, coming across with this condition. And usually the patients which I have seen, they come with irregular vaginal bleeding, discharge and subfertility or secondary amenorrhea. So we can resect it with the help of a resectoscope. The equipment is also here. मुझे कॉलर माइक मिल सकता है कोई? So we need a DNC trolley like we have in our OTs. Then we need some equipment. We should have a camera source. We should have a fiber optic cable and a monitor. And we have diagnostic hysteroscopies and also the operative hysteroscopy. This is a diagnostic hysteroscope. You can see it only has a this is a telescope. Here we put the इसका diagnostic working है कहाँ रखा Every stereoscope has different parts. This is the sheet. This is a stereoscope. This is diagnostic one. It only has this. This is known as the. Here comes the fiber optic light cable. This is the inflow for the water, saline, and here we put in the camera. This is the eyepiece. Here we put in the camera. So you can see it only has one channel. So अगर आपके पास ये वाला है तो आप सिर्फ diagnostic कर सकते हैं. आप इसमें कोई भी operative sheet नहीं है. Then we have the operative stethoscope. This is operative stethoscope, cold वाला, ठीक है? इसमें क्या कुछ होता है? इसके अंदर का टेलीस्कोप सेम यूज होगा, चाहे आपके पास ऑपरेटिव है या डायग्नोस्टिक है, टेलीस्कोप सेम यूज होगा. ये इसकी दिस इज द शेप ऑफ ऑपरेटिव टेलीस्कोप. इट हैज टू चैनल्स. चैनल जो आपके करीब है प्रॉक्सिमल इज फॉर इनफ्लो और
जो आपके दूर है वो है दैट इज फॉर आउटफ्लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है वो कोई कॉलर बाइक है तो वो दे दे। सो ये मेरा करीब है, यू विल पुट द इनफ्लो ओवर हेयर, और इसको आप यूजली बंद रखते हैं, जब जरूरत पड़े तो आप इसको ओपन करते हैं, दिस इज फॉर आउटफ्लो। और ये इसकी इज द हेयर वी पुट इन द इंस्ट्रूमेंट्स, व्हेन यू ओपन इट यू कैन पुट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स इनसाइड, एंड दिस इज द चैनल फॉर द हिस्टेरोस्कोप। ये और ये लॉक कैसे करते हैं, जीरो को जीरो पे ला के आप इसको यूं करेंगे तो वो लॉक हो जाएगा। सो दिस इज अ हिस्टेरोस्कोप विद cold instruments. It does not use any energy source. So generally to begin with आप इस पे investment करें, आप इसको use करें, क्योंकि जब आप इस पे expert हो जाएंगे then you can move on to resectoscope. So this is the resectoscope. Resectoscope के different parts होते हैं। इसको खोलो। This is obturator. This is the outer sheath. This is the inner sheath. This is the outer sheath. ये इसके अंदर जाएगी। Working element. This is the working element. It's just like a urological resectoscope, लेकिन ये पैसिव होता है। ये इसको इसके अंदर हम डालेंगे। अभी जब हम ये प्रोसीजर्स करेंगे तो you will see ये भी 0 से 0 लॉक होगा, और ये पैसिव होता है। जो यूरोलॉजी में यूज होता है वो एक्टिव होता है। इसका मतलब ये कि ऑल द टाइम उसका लूप बाहर होगा, जब आप इसको प्रेस करेंगे ओनली देन द लूप विल कम आउट। सो ये सेफ्टी मेजर है कि आपका लूप अंदर किसी चीज़ को डैमेज ना करे। और उसके बाद ये डिफरेंट इसके इलेक्ट्रोड्स हैं, ये देख रहे हैं आप, ये आपके इसमें वर्किंग एलिमेंट के अंदर फिक्स होते हैं। दिस इज कॉलिन्स नाइफ, दिस इज कॉलिन्स नाइफ, दिस इज लूप। लूप को हम फाइब्रॉइड को रिसेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। कॉलिन्स नाइफ कैन बी यूज्ड फॉर एडिजियोलाइसिस और फॉर कटिंग द सेप्टम। सो देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रिसेक्टोस्कोप। और अभी आपको बाकी चीजें बाइपोलर मुझे एक वो दे दो पॉइंटर। सो हेयर इन दिस डायग्राम यू कैन सी this is a simple stereoscope which I just showed you. Inflow channel, you can see the outflow channel, you can see the scissor going in through the instrument port, and pointer de do. And here you can see, what is this? This is the fiber optic cable, and here we put the camera. These are different parts of the operating stereoscope. आप देख रहे हैं endoscope है इसमें, उसके बाद inner sheath है, फिर outer sheath. This is the resectoscope. I just told you about this. These are different parts of resectoscope. You can see the obturator, you can see the inner sheath, outer sheath, then the working element, different instruments. Office stereoscopy, some people do it here, but maybe it's good for the diagnosis, but we cannot do the most of the procedures. I think Dr. Lodi will also agree with me. We cannot resect the polyps, big polyps, or we cannot resect the fibroids. Bipolar technology is very good because we don't need the normal saline glycine with this. Very important thing is the distension media. Which distension media we will use with this instrument? Normal saline is used for either for bipolar or for cold, for operative stereoscopy. Then we can use glycine or dextron or 5% dextrose water for monopolar resectoscope, monopolar energy. Complications क्या हो सकती हैं? Distension media की complications are very important. You should know the fluid balance. If you are using this resectoscope, which is monopolar, you will only use either glycine or 5% dextrose water, which we usually use here. And if you are using the bipolar resectoscope, you can use normal saline. For diagnostic stereoscopy and operative stereoscopy, you will use the normal saline. So fluid deficit is very important. What is fluid deficit? The amount of fluid which is going in and the amount of fluid which is coming out. If you minus that fluid, this is known as fluid deficit. Remember, when we are using normal saline for operative stereoscopy, for normal saline, the fluid deficit should not be more than 2.5 liters. 2 to 2.5 liters. And for glycine, the fluid deficit should only be 1 liter. आपको पता होना चाहिए कितना fluid बाहर निकला और कितना patient के अंदर fluid deficit हुआ. और for serious compromised patients, it shouldn't be more than 750 ml. So इसके important है, अगर आप hypotonic fluid use कर रहे हैं, जैसे कि glycine है, तो उसमें क्या होगा? If you have fluid overload, post-operatively, patient can go into hyponatremia, pulmonary edema, cerebral edema, seizures, even death. So
सो दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस कंडीशन. अगर आपका प्रोसीजर लंबा हो गया, आपको लग रहा है कि फ्लूइड डेफिशिएट मेरा ज़्यादा हो गया, स्टॉप द प्रोसीजर देयर एंड देन डू द काउंसलिंग प्री हैंड. मैं अपने पेशेंट को पहले बता देती हूँ, अगर लंबा हुआ बड़ा फाइब्रॉइड है तो मैं 2 सेशंस में करूँगी, मैं सेकेंड लुक हिस्ट्रोस्कोपी में इसको रिमूव करूँगी. इसी तरह अगर आप नॉर्मल सेलाइन यूज़ कर रहे हैं एंड इवन द इफ़ इट इज़ अ नॉर्मल सेलाइन बट द पेशेंट इज कॉम्प्रोमाइज और आपने बहुत ज़्यादा फ्लूइड डेफिशिएट हो गया है, तो पेशेंट कैन डेवलप पल्मोनरी एडीमा एंड हार्ट फेलियर. इसी तरह जो इंट्राऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है, यूट्राइन परफोरेशन है, हैमरेज है, परफोरेशन है, थर्मल डैमेज है. टेक्निक जो है डॉक्टर लोधी अभी डिटेल में आपको सारा कुछ बताएंगे. आई विल नॉट गो टू द डिटेल्स ऑफ द टेक्निक ऑफ स्टेरोस्कोपी. बस इसमें फ्लूइड पे प्रेशर और हम ये बता दें कि जो ऑपरेटिव करेंगे इसमें हमें 400 माइक्रोग्राम्स ऑफ मीज़ोप्रोस्टोल 3 आवर्स बिफोर द प्रोसीजर वी यूजुअली गिव. बेसिकली ये एक डिफरेंस बिल्कुल एक शॉर्ट सा एक है आपको गाइडेंस कि व्हेन यू आर डूइंग द स्टेरोस्कोपी, इसके वॉल्यूम को बंद कर दें, वॉल्यूम बंद कर दें. So you keep the black hole at 6 o'clock position, then you gradually enter and you will see very clearly you will see this. We also have 0 degree and 30 degree. 0 degree जो होता है वो क्या होता है, वो आपको एक पैनोरामिक व्यू देगा और 30 डिग्री में आप ज़्यादा करीब से कॉर्नर्स में आप रिसेक्शन कर सकते हैं. यू कैन सी द एडियंस एंड ऑल दैट. अच्छा जी, उसके बाद हम ये पॉलिप्स दे, आज आप वैरायटी ऑफ पॉलिप्स देखने वाले हैं. काफ़ी पेशेंट्स हैं पॉलिप्स की, दे कैन कम इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. इसी तरह जो ये एंडोमेट्रियल पॉलिप्स इसमें आप देख रहे हैं, देखने में एक नज़र आती है, अल्ट्रासाउंड पे करें तो वो 2, जब आप देखते हैं तो फिर अंदर आपको 2 या 3 नज़र आती हैं. इवन सेलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी इज़ नॉट एक्यूरेट फॉर दिस. और इसी तरह आप इसमें अगर देखें तो ये भी, ये सारी वीडियोज़ कोई नेट से नहीं ली हुई, ये सारी वीडियोज़ मेरी अपनी हैं. Here you can see this is the right ostia. You can see this polyp. Here you can see the cutting of the polyp. It is cut from the base. Base से नहीं काटेंगे तो वो दोबारा regrow कर जाएगी. So this is done with operative stereoscope with cold scissors. ठीक है? चलिए आगे दिखाते हैं. सो ये मेरी बड़ी फेवरेट पिक्चर है. ये एक अनमैरिड लड़की थी, अब इसकी शादी हो गई है और ये आई थी मेरे पास. ठीक है, बिल्कुल. नाउ शी इज़ ट्राइंग टू कंसीव. ये इसकी मल्टीपल पॉलिप्स थी, हमने 62 पॉलिप्स निकाली थी इसकी और आई हैव प्रेजेंटेड दिस एट डिफरेंट फोरम्स क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग और रेयर केस है. यू कैन सी दिस पिक्चर, यू कैन सी डिफरेंट पॉलिप्स इनसाइड. और ये सारी पॉलिप्स हमने निकाली थी इसकी विद द हेल्प ऑफ कोल्ड सीजर. ये शुरू की बात है जब मैंने नया वहाँ पे एक्सरसाइज में स्टेरोस्कोपी स्टार्ट की थी. अब ये देखें कितनी पॉलिप्स हैं इस पेशेंट के अंदर, देख रहे हैं. चले. सो सिमिलरली ये एक और पिक्चर है लॉन्ग एंडोमेट्रियल पॉलिप की. इसमें आपको बाहर से नज़र आएगी ये एक पॉलिप, आपको लगता है जैसे ये बाहर ही है, बट व्हेन यू एंटर इनटू द एंडोमेट्रियल कैविटी आप देखेंगे इसका बेस कहाँ पे है. इट हैज़ अ बेस हायर अप अटैच इनटू द यूट्राइन कैविटी. सो प्लीज़ डू नॉट रिमूव द पॉलिप जस्ट बाय सिंपल DNC. ऑलवेज डू स्टेरोस्कोपी टू सी फ्रॉम वेयर इट इज़ अराइजिंग, फ्रॉम विच वॉल इट इज़ अराइजिंग. ठीक है. और ये एक नहीं थी, फिर ये 2 हमें मिली थी, अंदर हमें एक और मिली थी. आई विल जस्ट रन तो ताकि हमारा टाइम बचे. अच्छा जी, फिर उसके बाद ये भी हमारा मल्टीपल पॉलिप्स हैं इसमें. यू कैन सी वेस्कुलर मल्टीपल पॉलिप्स. शी वॉज अ पेशेंट ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग. आप इसमें देख सकते हैं कितनी वेस्कुलर पॉलिप्स हैं और ऑल देम टर्न्ड आउट टू बी बिनाइन. एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा. एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा लुक्स लाइक रिटेन्ड POCs. याद रखें व्हेन यू आर डूइंग स्टेरोस्कोपी और आपको रिटेन्ड POCs की तरह की नज़र आए चीज़, अभी आपको विल्लाई टाइप की चीज़ दिखाएंगे तो आपको वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की तरह प्रेजेंट करती है. लुक एट दिस. आपको लग रहा है ना कि ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू है. यार लाइट्स ऑफ करें प्लीज़, थोड़ी सी लाइट्स ऑफ करें प्लीज़. स्विच ऑफ द लाइट्स. सो इट वेरी मच लुक्स लाइक एंडोमेट्रियल दिस ट्रोफोब्लास्टिक. सारी ना ऑफ करें, पीछे वाली जला दें. अच्छा जी, फिर अब हम आते हैं कौन सा फाइब्रॉइड करना है और कौन सा फाइब्रॉइड नहीं करना. बहुत से पेशेंट रेफर होकर आते हैं, अगर उनके अल्ट्रासाउंड पे आता है कि इट इज़ पुशिंग द एंडोमेट्रियम तो पेशेंट रेफर कर देते हैं वो लोग मायोमेक्टमी के लिए, सबम्यूकोइडल रिसेक्शन के लिए. प्लीज़ रिमेंबर इफ़ यू आर अ बिगिनर जस्ट गो फॉर टाइप 0 और टाइप 1 फाइब्रॉइड्स, नॉट मोर देन दिस. इवन टाइप 2 फाइब्रॉइड्स कैन बी रिमूव्ड बट नॉट बियॉन्ड टाइप 2 फाइब्रॉइड्स.
टाइप 1 मायोमा रिसेक्शन, अगर वो लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो बेस ऑफ द मायोमा इज रिसेक्टेड एट द एंडोमीट्रियम लेवल एंड द मायोमा इज एक्सट्रैक्टेड विद द लूप और ब्लाइंडली विद द क्यूरेट. बट if it is a larger than 2 centimeters, then progressive resection from the surface of the myoma towards the endometrium has to be performed, and this resection should be in the longitudinal manner. जैसे आप फ्रेंच फ्राइज को काटते हैं, जैसे आप बेबी चिप्स, जो चिप्स होते हैं, लेस की तरह नहीं काटना, आपने फ्रेंच फ्राइज की तरह काटना है ताकि कम टाइम लगे और थोड़ा सा वो रिसेक्ट होके वो बाद में फॉर्सेप्स के साथ भी रिट्रीव आप उसको कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल डूइंग द फाइब्रॉइड रिसेक्शन. You can see this picture. There are multiple submucosal fibroids. ये हमारी पेशेंट थी, इसमें आप देखें कि ये सारे फाइब्रॉइड्स हैं and all of them were resected beautifully with the help of resectoscope, and all of them were type 0 or type 1 fibroids. ये आप देखें, जब आप स्टार्ट करते हैं यू स्टार्ट डूइंग इट लॉन्गिट्यूडनली, जैसे मैंने अभी आपको बताया. देखें, और ये पैसिव है, हमेशा पीछे से आगे आना है, कभी भी आगे से पीछे नहीं जाना. आप परफोरेट कर देंगे यूट्राइन कैविटी को. ऑलवेज गो ऑन द बियॉन्ड द फाइब्रॉइड एंड देन यू पुश इट. व्हेन यू विल पुश इट, इट विल, द लूप विल कम आउट एंड इट विल बी रिसेक्टेड. दिस इज सक्सेस स्टोरी. माई पेशेंट सादिया, who had 2 attempts of submucosal resection and then she delivered a healthy baby. बाद में ऐसा कीमा आपको नज़र आता है इस तरह का. ठीक है, सो टाइप 0 रिसेक्शन ये आपको बता रहे हैं, ये पूरा टाइप 0 है मायोमा, और इसमें आप देखें कैसे रिसेक्शन हो रही है. I am only using monopolar because right now I don't have bipolar. I have a bipolar electrode, वो आपको बताएंगे, उससे you can cut the septum resection. And that bipolar electrode, Tanveer will show you, can be inserted into any stereoscope. और पीछे आपके पास जनरेटर बस bipolar का होना चाहिए. It's not very expensive, और वो आप उससे easily आप bipolar use कर सकते हैं, and you can use saline with this. थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग केसेस हैं, 1-2 केसेस जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ. लुक एट द साइज ऑफ दिस फाइब्रॉइड. ये 6 × 5 सेंटीमीटर का था, और ये पूरे का पूरा कैसे निकल आया आप देख रहे हैं. वैसे तो कीमा करके निकाला था हमने, ये पूरे का पूरा कैसे निकल आया. ये देखिए, मैंने कोई रेफरेंस के लिए बताया कि मैंने रिसेक्टोस्कोप यूज़ किया है और मैंने ये निकाला. अब ये किस तरह निकाला है. ये पेशेंट 6 ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ आई थी. मेरी ट्रेनिस को, मेरी पीजीज को सबको पता है. इसको हमने बिल्डअप किया और उसके बाद आई डिड हर स्टेरोस्कोपी. आई रिसेक्टेड longitudinally part of the fibroid. Os was open because of misoprostol, and also luckily she had some, the os was not very tightly closed. So after removing part of the fibroid longitudinally, I just inserted a small sponge holding forceps, and I then avulsed it, and the whole of the fibroid came out because it was type 0. आप देख रहे हैं. अच्छा, उसके बाद आता है ये भी वही पेशेंट है. एक और पेशेंट थी ये हमारी, इसमें आप देखें ये भी टाइप 0. ये इसका बेस है और ये इसमें 2 फाइब्रॉइड्स थे, नहीं 2 नहीं थे, ये एक ही था. ये इसका कटा हुआ पोर्शन है. इसमें भी हमने इसको काटा और उसके बाद व्हेन आई फेल्ट के कट गया है, उससे आपका ग्लाइसिन भी ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, पेशेंट का जो फ्लूइड डेफिशिएंट है वो भी ज़्यादा नहीं होगा. सो देन आई रिमूव्ड इट विद बाय इंट्रोड्यूसिंग अ लॉन्ग आर्टरी फॉरसेप्स, एंड दिस इज ऑन दिस अल्ट्रासाउंड यू कैन सी द होल मैस, एंड दिस इज व्हाट केम आउट, एंड दिस इज व्हाट वाज सीन ऑन द हिस्टेरोस्कोपी. और इसके अंदर आप ये देखें, ये सो ये टाइम के साथ कर करके आपको आइडिया होता है कि आपने किस पेशेंट में क्या करना है. शुरू में आपने सिंपल केसेस रखने हैं, छोटे फाइब्रॉइड्स रखने हैं, छोटी पॉलिप्स रखनी है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो. अच्छा, उसके बाद अब हम आते हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे लेटली नज़र आनी शुरू हुई हैं. मोस्टली आपको भी नज़र आती होंगी, लेकिन हम लोग इसको डायग्नोज नहीं कर पाते. हमारे यहाँ इलीगल अबॉर्शंस का बहुत रवाज है और पेशेंट दाइयों के पास जाके DNCs करवाती हैं. लेटली मैंने देखा बहुत सी पेशेंट एमेनोरिया के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, सेकेंडरी सब फर्टिलिटी के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं. तो अंदर मुझे इस टाइप की चीज़ें नज़र आई. ये जब उनको निकाला गया तो इस तरह की चीज़ें थी, और उसके बाद जब उनकी हिस्टोपैथोलॉजी की गई तो वो बोन नज़र आई, ऑसियस मटेरियल नज़र आया. तो ये आप देखें, ये पूरा ये बोनी स्ट्रक्चर था और ये बोन टाइप की चीज़ें अंदर पड़ी हुई थी, पता नहीं कब से पड़ी हुई थी. सो ये कोई भी काम नहीं करता. ब्लाइंडली जब आप DNC करेंगे तो आप इनको मिस कर देंगे, बिकॉज दे आर व्हेन दे गो रिमेन इनसाइड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो ये एम्बेड हो जाती हैं, ये आपको नज़र भी नहीं आती. और फिर ये जो है पेशेंट डिफरेंट कंडीशन के साथ प्रेजेंट करते हैं, एशरमैन सिंड्रोम के साथ, सेकेंडरी सब फर्टिलिटी के साथ, एमेनोरिया के साथ. तो इन पेशेंट्स को फिर आपको ये स्टेरोस्कोपी करके इसको रिट्रीव करना पड़ता है.
उसके बाद ये भी एक और बोनी, आप देखें डिफरेंट बोन्स नज़र आई एक ही पेशेंट के अंदर। इस पेशेंट की भी डीएनसी हुई थी 3 महीने पहले, और उसके बाद ये प्रेजेंट की थी हमारे पास इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ। ये आप देख रहे हैं बोन नुमा स्ट्रक्चर, स्कैपुला होगी, पता नहीं क्या होगा बच्चे का। ये सारी बोन्स अंदर से निकली थी, और ये इसका प्रूफ है हिस्टोपैथोलॉजी का। ये आप इसको देखें, सेरेटेड फॉर्सेस मैंने लिया, उसके साथ इसको पकड़ के हमने बाहर निकाला। अच्छा, अब एक और चीज़ जो है, ये क्या है? Perhaps Dr. Lodi will tell me what is this, because it can't be. This patient was referred to me by one of our consultant, Dr. Nasreen Abu Bakr. I don't know whether she is sitting here or not. ये उनकी मेड थी, और ये सब फर्टिलिटी के साथ इसने प्रेजेंट किया था। मैंने जब हिस्ट्रोस्कोपी की तो मुझे इस तरह की बोन नुमा चीज़ें नज़र आई। हमने कहा ठीक है, कोई बोन है, कोई चीज़ अंदर रह गई है, डीएनसी हुई होगी, लेकिन वो निकलती ही गई और वो सब एक ही शक्ल की थी। अब देखिए, अगर वो स्कैपुला है तो 1 या 2 होंगी ना, इतनी सारी एक ही तरह की कैसे नज़र आई? अगर वो बच्चे की ह्यूमरस है तो वो इसी तरह एक मल्टीपल तो ऐसे नज़र नहीं आ सकती। तो फिर मैंने फिर लिटरेचर सर्च आउट किया, तो उसमें एक कंडीशन होती है जिसको ऑसियस मेटाप्लेजिया कहते हैं, और वो बार बार भी हो सकती है। सो अभी हमने इसको केस रिपोर्ट भी करेंगे, तो ये इन माय ओपिनियन इट वाज ऑसियस मेटाप्लेजिया। बाकी आपको सबको पता है रिटेन प्रॉपर्टीज़ वगैरह आपने कैसे निकालनी है, बहुत इजी होता है। आपको कोई भी थ्रेड मिल जाए, ये अब एंटीरियर वॉल ऑफ यूट्रस में एम्बेड हुई हुई थी सर्विक्स के अंदर, आपको सिर्फ थ्रेड नज़र आ रहा था, आपको प्रॉपर्टी नज़र नहीं आ रही थी। सो आपने उसको एंटीरियर वॉल ऑफ सर्विक्स के अंदर थी यहाँ पे, सो आपने थ्रेड को थोड़ा सा देखा, उसको किया, और उसके बाद फिर आपको ये इट इज़ गोइंग इनटू द इंटीरियर वॉल ऑफ द सर्विक्स, सो इट वाज रिमूव्ड। ये आपकी प्रॉपर्टी रिट्रीव हो चुकी है यहाँ पे। फिर सेप्टम सेक्शन है, अभी डॉक्टर लोधी एक सेप्टम सेक्शन करेंगे। बस बताने की बात यह कि सेप्टम सेक्शन बहुत तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपके पास चीज़ है आप उससे कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि ऊपर से उसका फंडस जो है वो फ्लैट है, वो बाइकॉन्वेट नहीं है। इधर मैं बाइपोलर हुक के साथ कर रही हूँ, अभी मैं आपको बाइपोलर हुक दिखाऊंगी। ये आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव इन्वेस्टमेंट फॉर बाइपोलर रिसेक्टोस्कोप और बाइपोलर। सो सेप्टम रिसेक्ट करने के बाद की पिक्चर है, ये देखिए फंडस फ्लैट हो गया। पहले हल्का सा इसके अंदर एक लाइन थी इसके अंदर, और ये आरपीओसीज हैं इसकी, मेरा ख्याल है। ये आप देखें, ये बिल्कुल वैसे लग रहे हैं जैसे मैंने आपको एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की पिक्चर दिखाई थी। ये पेशेंट बाहर इंग्लैंड से आई थी, वहाँ पर इसकी डीएनसी हुई थी। शी हैड रिकरेंट मिसकैरेजेस, इसके 3 मिसकैरेज हो चुके थे। जब मेरे पास आई तो मैंने कहा मैं डायग्नोस्टिक स्टेरोस्कोपी करके देखती हूँ अंदर कोई सेप्टम या पॉलिप तो नहीं है। तो आप ये देखें कितने पीओसीज इवन इंग्लैंड वालों ने भी छोड़ दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये प्रेग्नेंट है और ये 2nd ट्राइमेस्टर में है। अच्छा जी, उसके बाद ये बाइकॉन, ये हमारी मुलेरियन एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। ऑलरेडी मैंने बताया, इफ़ इट इज़ अ सेप्टेड यूटस दे इज यूजुअली रिज, और इसमें आप कर सकते हैं सेप्टम काट सकते हैं, इसमें आप कभी भी सेप्टम नहीं काटेंगे अनटिल अनलेस कि ये आपकी ये वाली क्लासिफिकेशन है। लेटेस्ट जो मुलेरियन डक्ट एबनॉर्मेलिटी की एक और क्लासिफिकेशन आई है जिसको हम ये कहते हैं, इट इज़ क्लास U2 और ये B है इसकी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका नॉट दिस वन, सॉरी दिस वन, इसके अंदर आपका सेप्टम भी होता है, ये वाली ये होती है आपकी बाय कॉर्पोरियल सेप्टेट, ये बाय कॉन्वेट भी है।